More than 30 years later, puja ceremony was conducted in the Gyanvapi Mosque premises, or basically underneath with the basement where the Vyasji ka Tehkhana is known to be. A diya was lit. Puja ceremony was performed in the early hours of the morning on Thursday. Locals also came out in big numbers. This is called the Vyasji ka Tehkhana in the mosque premises. This is to offer prayers. The puja, interestingly, was done without wasting any time. 9 hours after the Varanasi district court ordered that 10 cellars of the Tehkhana be unsealed and with the supervision of the district administration, prayers be organized. Varanasi administration interestingly swung into action right away post midnight. Heavy security deployed, barricades were removed from the Tehkhana area. A pathway was created where the devotees and the priests could go and offer prayers in peace. Now, the arati of the Hindu murtis, the idols, were also that were present there in the basement premises. That was also performed. Bhog Prasad was then distributed. A video has now meanwhile emerged. While this was happening with regard to devotion and bhakti as per the court orders, there was some youth changing the signboard toward the masjid complex where it says the Kashi Vishwanath temple and of course the Gyanvapi mosque, which are adjacent to each other. Instead of the mosque, they added the temple poster of making it now the Gyanvapi Mandir mark. Welcome to Varanasi. The movement has been set after the court verdict. Within hours, district magistrate and his team held a meeting, and in the wee hours yesterday, a meeting was held and the barricades were removed, the doors were opened and Puja Path began. Once again, after a long gap of 30 years, we are present in between the Kashi Vishwanath temple right there and the Gyanvapi complex to the left. Cameraman Gaurav showing you the visuals as devotees thronging the temple in the morning hours. The police security has also been beefed up out here. The heavy police force around and the devotees coming in large numbers. I'll have some of the devotees with me, and you can clearly see they have come from far, and that has been the nature of Kashi, which is on in the Trishul of Lord Shiva. With cameraman Gaurav, Samarth Srivastava for India Today. माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट किया गया, कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट किया गया. Order has been complied with by district administration, keeping in view the law and order situation which may deteriorate. And the second thing is, these orders are not kept. These orders are not kept for waiting. These orders are implemented immediately. Therefore, the district administration, in its wisdom, has implemented the order last night, and from today, the worshippers, they are being allowed, they are entering, and they are worshipping there. स्थिति यह है कि कल कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में राज्य सरकार ने वहां पे कोर्ट की ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है और बैरिकेडिंग से एक गेट बना दिया गया है और वहां पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहां पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है. तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुकी है. क्या प्रक्रिया रहेगी पूजा पाठ में? आप लोग क्या करने वाले हैं आज? वही षोडशोपचार से पूजन होगा, जैसे हम पूर्वत करते आ रहे थे वही पूजन करेंगे. पहले भी कर रहे हैं अपने 93 से पहले? नहीं, हम उसके पहले नहीं किए थे, यह हमारा दुर्भाग्य था, लेकिन अब करेंगे. अब तो सर्वप्रथम वहीं जाकर के करेंगे. और हमारी जो भारतीय सरकार है प्रशंसनीय है, ऐसी सरकार होनी चाहिए. अंदर क्या क्या रखा है? गए अभी तक? अंदर हमको जाने कहाँ दिया गया था अब तक. अब तो आज से शुरुआत किए हैं. इसको मान करके हम घर पर ही रुद्राभिषेक किए थे बाबा विश्वनाथ को मान करके. अब आज जा रहे हैं. आम दर्शक या श्रद्धालु समझना चाहे कि पूजा अर्चना आप क्या करेंगे वहाँ पर तहखाने में जाकर, जो जहाँ पर आइडल्स रखे हैं, क्या होगा? सब पहले पाद्यार्घ आचमनीय, शुद्धोदक स्नान, पंचामृत से स्नान करा करके भगवान को वस्त्र यज्ञोपवीत आदि करेंगे, तिलक करेंगे, पुष्पमाला देंगे, धूप दीप जलाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, आरती भी होगी. एकदम जोर लगातार चलती रहेगी. लगातार चलती रहेगी, दफा दिन शास्त्रवत चलती रहेगी. सुबह शाम तो चलनी ही है.
और मध्याह्न में भगवान का भोग लगेगा। और शयन आरती रात में हुई है, उसमें क्या कुछ हुआ होगा? हाँ, वो भी जो है शयन आरती जो होगी वहाँ पर जो पूजा की प्रक्रिया है बाबा विश्वनाथ की समय वर्तमान में चली, सेम वही चलनी है, वही चलेगी। जो बाबा विश्वनाथ की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया वही चलेगी। व्यास जी की जो परंपरा है, जो व्यास परिवार है, बहुत सुंदर लोग पूजा कराते आ रहे हैं और हमारी जो सरकार है बहुत सुनहरा मौका दिया हुआ है। तो अब क्या चाहिए, हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय। न्यायालय के आदेश से वह जो बंद तहखाना था उसको खोलकर और उसमें जो भी विग्रह हो उनको पूजा पाठ करने का निर्देश दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी पक्ष को कोई कठिनाई नहीं होगी। शास्त्री जी, कितना बड़ा दिन है। कल जिस तरह से व्यास तहखाने को 30 साल बाद लगभग खोला गया और पूजा अर्चना शुरू। गंगा के तरंग से जिनकी जटाएं रमणीयता को, सुंदरता को, मधुरता को, मनोहरता को, अनुपमेयता को, विलक्षणता को प्राप्त होती हों, ऐसा देवाधिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ जो अनंत ब्रह्मांड को विलीन करने का सामर्थ्य रखते हैं, जो अनंतानंत ब्रह्मांड, मायांड, जीवांड, शाक्तांड और प्रकृतंड के नायक हैं, उनके दरबार में जो पूजन विधान है वह पूजन विधान हो रहा है और हम सबके लिए अत्यंत हर्ष का, गौरव का, आनंद का विषय। खुशी है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक एक पायदान आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो व्यास जी के तहखाने में हम लोग को मतलब दर्शन का मतलब माननीय न्यायालय से आदेश मिला है कि मतलब जनता के लिए खोल दिया जाए। अभी अब बाबा का उद्धार अभी बाकी है। अभी मतलब हम लोग को ज्ञान वापी मंदिर अभी लेना है। अभी हमारा पूर्ण प्रतिज्ञा नहीं हुई है, अभी उसको पूर्ण करना है। आज का दिन बहुत गौरवान्वित क्षण लग रहा है। हम रोम रोम पुलकित हो गया है। जैसे ही बाबा का दर्शन किए हमको लगता है कि जो माननीय कल का फैसला जो माननीय डॉक्टर ए के विश्वेश जी ने दिया था कि जो है ये जैसे फैसला दिया वह फैसला हमको अभूतपूर्व लगा। उन्होंने आदेशित किया था कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट तत्काल जो है इसको जो है जो व्यास जी का तहखाना उसको खोले और जनता के लिए उसको रास्ता मुहैया करे। हम लोग बाबा का दर्शन करने गए, बड़ा ही गौरवान्वित क्षण है।